नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। मंत्री केटीआर ने युवाओं से देश के विकास में भाग लेने का आह्वान किया है। महिंद्रा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में मंत्री केटीआर ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा है कि युवा नवाचार में काफी सक्रिय है। उन्होंने युवाओं से देश के विकास में योगदान देने को कहा। Science and what he wants to bring about in Mahindra University, eventually a blend of both. I remember a conversation that I had with a friend of mine. Now, this friend of mine had told me that there are two kinds of people in the world: artists, and then there are the scientists. Artists who think with their heart, and scientists who basically let their mind dominate. I think what Mr. Anand Mahindra was alluding to today is he wants Mahindra University to create that new blend, that new breed of people, which is a good combination of heart and mind, which is a blend of art and science, a new breed which is a combination of artists and scientists, and hopefully all of you and the future classes of Mahindra University, future students of Mahindra University will become an embodiment of that. Good luck to you, sir, on that effort, and I hope you'll set a benchmark. I hope you'll raise the bar in India for other universities, for other academic institutions. Mr. Mahindra's life has been spent in making our country proud by coming out with products and services that are truly world class. He is a visionary in that many of his ideas are futuristic, anticipating the needs of the world decades ahead of time. I'm sure that the university also has fostered a strong culture of compassion, innovation, and inquisitiveness in the hearts and minds of all the students here. Young India, I call India young because, as you all know, if you look at our population today, 1.4 billion India, 50% of India is less than the age of 27. 65% of India is less than the age of 35. That's why I call our country a young country. As the world is getting older, India is getting younger. And youth in our country especially are brimming with ideas, are brimming with energy, are wanting to take on the world and have an aspiration that is truly global. They have a voice and want to be heard across the world. They are no more passive observers of events going by, but possess a strong desire to be at the center stage and make a difference and an impact globally. In a way, this augurs very well for the country as we are very close to the cherished milestone of 75 years of independence of our glorious nation. मंत्री हरीश राव ने कहा है कि हैदराबाद दुनिया की टॉप 5 कंपनियों के लिए निवेश हेतु महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर के नेतृत्व में आईटी सेक्टर का काफी विकास हो रहा है। यह बहुत अच्छी बात है कि तेलंगाना नीति आयोग की इनोवेशन रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। मंत्री हरीश राव ने गच्चीबौली में एस्पायर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं शुरू की गई है। तेलुगु छात्रों को नौकरी के अवसर प्रदान करने और तदनुसार मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आगे आना बहुत ही खुशी की बात है। मंत्री ने 3 साल में 3000 से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु इस संस्था का विस्तार करने की मंशा व्यक्त की है। इस अवसर पर सरकार के सचिव आरकेपुड़ी गांधी, हुस्नाबाद विधायक ओडितेला सतीश और वन विकास निगम अध्यक्ष प्रताप रेड्डी उपस्थित थे। टीआरएस पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष एवं मंत्री केटीआर ने कहा है कि राज्य भर में हो रही भारी बारिश को देखते हुए यह अपने जन्मदिन समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। कई जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण लोग परेशान हैं। पार्टी के नेताओं को उनसे गिफ्ट ए स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत जितना हो सके उनकी उतनी मदद करने का आह्वान किया है। केटीआर ने पार्टी प्रतिनिधियों और नेताओं से जन्मदिन मनाने के बजाय स्थानीय लोगों की मदद करने की अपील की। मंत्री केटीआर के जन्मदिन पर केपीएचबी कॉलोनी में कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। टीआरएस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने विधायक कृष्णा राव के हाथों जीएलएन रेड्डी के नेतृत्व में 200 सफाई कर्मचारियों को छतरियां बांटी गई। कार्यक्रम में कॉर्पोरेटर मंदडी श्रीनिवास राव, डिवीजन अध्यक्ष कृष्णा रेड्डी, सचिव राजेश भवानी, नरसिम्हा रेड्डी, एसके महबूब, भास्कर नाई, सुरेंद्र रेड्डी, हाजी, मल्लेश्वर रेड्डी, श्रीकांत, अशोक रेड्डी और अन्य ने भाग लिया।
पीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राज्य में केसीआर और केटीआर लोगों के बीच जाकर रूबरू होने की स्थिति नहीं है। उन्होंने ट्वीट किया है कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां पिता और पुत्र लोगों के बीच स्वतंत्र रूप से घूम सके। ट्विटर बटेर को कल मेटपल्ली में गन्ना उत्पादक किसानों और आज सिरसिल्ला में वीआई ने आड़े हाथों लिया। केसीआर को भद्राचलम में बाढ़ पीड़ितों के विरोध के बारे में अच्छी ही जानकारी है। उनकी अब ऐसी स्थिति नहीं रही है जहां दोनों लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याओं की जानकारी ले। उन्होंने केसीआर और केटीआर पर निशाना साधते हुए कहा है कि बंगारू तेलंगाना में यह स्थिति वास्तविक है। दिल्ली से हैदराबाद आ रही फ्लाइट में अजीब घटना घटी। तेलंगाना राज्यपाल में मध्य रात्रि की उड़ान में अस्वस्थ हुए यात्री को प्राथमिक उपचार किया। राज्यपाल तमिलसाई वाराणसी से हैदराबाद लौट रही थी। सीने में दर्द और अन्य समस्याओं के कारण जब विमान के हवा में उड़ान के दौरान यात्री गंभीर रूप से अस्वस्थ हुआ, तब फ्लाइट क्रू ने घोषणा कर दी कि विमान में कोई डॉक्टर है। डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन, जो इस मामले के बारे में जानते थे, तुरंत जवाब दिया और यात्री का प्राथमिक उपचार किया और उसे राहत दी है। स्वस्थ हुए यात्री ने राज्यपाल को धन्यवाद दिया। साथ ही उस फ्लाइट में सफ़र कर रहे अन्य यात्रियों ने भी उन्हें धन्यवाद दिया। यह मामला तब सामने आया जब उसी फ्लाइट में सफ़र कर रहे एक अन्य यात्री ने इलाज के दौरान कुछ तस्वीरें खींची और अपने ट्विटर पर शेयर कर दिया। शहर के कुतबुल्लापुर में बाढ़ ने कहर बरपाया। भारी बाढ़ के कारण कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई। वोकशिट एन्क्लेव, वीनस एन्क्लेव और बालाजी लेआउट गाजुला रामारम में बाढ़ में डूब गए। निजामपेट में बंदर लेआउट, रेड्डी एन्क्लेव, सप्तपदी विला में बाढ़ आ गई। वीनस एन्क्लेव में कार पूरी तरह से डूब गई है। बाढ़ के कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विधायक केपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मुंबई के लोगों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें मिल जाएगा। एक विशेषज्ञ समिति ने निष्कर्म निकाला है कि उस्मानिया भवन असुरक्षित और अस्पताल के लिए अनुपयुक्त है। इसमें कहा गया है कि अगर इमारत की मरम्मत की जाती है तो भी इसका इस्तेमाल अस्पताल के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। चूंकि यह एक विरासत भवन है, उस्मानिया ने सुझाव दिया कि भवन की मरम्मत एक वास्तुकार की देखरेख में की जा सकती है। हालांकि इसे अस्पताल के रूप में उपयोग करने के लिए यह कहा जाता है कि ऑक्सीजन, पानी, सीवेज, गैस पाइपलाइन जैसे कार्यों की आवश्यकता होती है। इसमें कहा गया है कि अगर इस तरह की मरम्मत की जाती है तो इमारत की विरासत और संरचनात्मक ढांचे को नुकसान होगा। विशेषज्ञ समिति ने खुलासा किया कि इसकी मरम्मत की जा सकती है और गैर अस्पताल उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। हाईकोर्ट कुछ समय से उस्मानिया अस्पताल की इमारत को गिराने और एक नया निर्माण करने के लिए दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है और दूसरों द्वारा इसे ध्वस्त नहीं करने के लिए, क्योंकि यह एक विरासत भवन है। R&B, पंचायत राज, जन स्वास्थ्य विभाग, ENC, GHMC, चीफ सिटी प्लानर और NIT, IIT और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों के साथ NIT, IIT, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों की एक टीम ने उस्मानिया अस्पताल भवन के निर्माण का अध्ययन किया है। उच्च न्यायालय के आदेश महाधिवक्ता BS प्रसाद ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी। AG ने CJ न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान और न्यायमूर्ति SS नंदा की पीठ से समिति की रिपोर्ट पर सरकार के फैसले की घोषणा करने के लिए कुछ समय देने को कहा। याचिकाकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद हाईकोर्ट ने आगे की सुनवाई 25 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। हैदराबाद शहर में हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए हैं। तालाब लबालब है, वहीं नाले का पानी सड़क किनारे बहने से कई कॉलोनियां जलमग्न हो गई तो कई कॉलोनियों में कीचड़ फैल गया है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाग्यनगर, उस्मान सागर, हिमायत सागर और हुसैन सागर जलाशयों से भारी बाढ़ का पानी इनफ्लो हो रहा है। उस्मान सागर का इनफ्लो जहां 2000 क्यूसेक है, वहीं अधिकारियों ने चारों गेट खोलकर मूसी नदी में 832 क्यूसेक पानी छोड़ा। उस्मान सागर जलाशय की पूर्ण जलस्तर क्षमता 1790 फीट है और वर्तमान में जलस्तर 1786.65 फीट तक पहुंच गया है।
जबकि 500 क्यूसेक पानी हिमायत सागर में इनफ्लो हो रहा है और 330 क्यूसेक पानी 2 गेट खोलकर मूसी में छोड़ा गया। हिमायत सागर जलाशय की पूर्ण जल स्तर क्षमता 1763.50 फीट है और वर्तमान में बाढ़ का पानी 1760.50 फीट तक पहुंच गया है। हुसैन सागर जलाशय में जल स्तर भी बढ़ रहा है। हुसैन सागर में एक बार फिर जल स्तर पूरी क्षमता पार कर गया है। हुसैन सागर की पूर्ण जल स्तर क्षमता 513.41 मीटर है और वर्तमान जल स्तर 513.43 मीटर बना हुआ है। मेडचल जिला दुंडीगल डिवीजन के बहादुरपल्ली गांव में बोबा खान तालाब लबालब है। भारी बाढ़ के पानी के कारण नगर निगम अधिकारी सतर्क हो गए और बचाव के उपाय कर रहे हैं। शहर में भारी बारिश के कारण जीडीमेटला क्षेत्र में फॉक्स सागर तालाब लबालब है। इससे तालाब के ऊपर क्षेत्र में उमा महेश्वर कॉलोनी निवासियों में खौफ बना हुआ है। कोमपल्ली, दुलपल्ली और गुंडलापोचम्मपल्ली से फॉक्स सागर तालाब में बड़े पैमाने पर बाढ़ का पानी जमा हो रहा है। साथ ही दुंडीगल डिवीजन अंतर्गत बहादुरपल्ली गांव में बोबा खान तालाब पूरी तरह से लबालब होकर पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। इस पर नगर निगम अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों को सतर्क कर दिया है। प्रमुख वाईएस शर्मिला ने आलोचना करते हुए कहा है कि सीएम केसीआर के नुकसान को देखते हुए मुआवजा देने की घोषणा करने और बाद में भूल जाने की हमेशा की आदत है। उन्होंने भद्राद्री कोत्तेगुडेम जिला पिनपाका मंडल के रावीगुडेम गांव का दौरा किया। उन्होंने गोदावरी बाढ़ के पानी में जलमग्न हुए घरों निरीक्षण किया। उन्होंने सीएम केसीआर पर आरोप लगाया है कि वरंगल और खम्मम के किसानों को सीएम ने मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन वे इस आश्वासन को पूरा नहीं कर सके। उन्होंने मीडिया के सामने वायदा करने और फार्म हाउस में आराम फरमाएंगे। शर्मिला ने केसीआर से सवाल किया है कि वे मुख्यमंत्री होने पर उन्हें यह नहीं मालूम कि बाढ़ पीड़ितों की शीघ्र राहत और सहायता उपलब्ध कराना चाहिए। शहर में आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस लगातार नई तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। अपराध का ग्राफ कम करने के लिए नई तकनीक भी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि मौजूदा तकनीकों से अपराध और ट्रैफिक समस्या कम नहीं हो रही है, इस पर साइबराबाद पुलिस अधिक अपडेट तकनीकी लाने की कोशिश कर रही है। शहर में हर जगह सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद अपराध का ग्राफ कम नहीं हो रहा है। ट्रैफिक समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। प्रौद्योगिकी के मैनुअल प्रबंधन से समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए साइबराबाद पुलिस ने सीसी कैमरों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़कर अपराध और यातायात की समस्याओं के जांच के लिए IIIT प्रोफेसरों के साथ समझौता किया है। इस तकनीक को अमल में लाने हेतु IIIT में विशेष अध्ययन किया जा रहा है। उम्मीद है कि साइबराबाद में विशेष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने को लेकर कारगर प्रणाली बनाई जाएगी ताकि सीसी कैमरों से सभी जानकारी एकत्र की जा सके। अगर शहर में सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक अपराध होते हैं तो तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी। बाकी समय में पुलिस को अलर्ट करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर यह तकनीक गोलीबारी, महिलाओं के गले, चेन स्नैचिंग और महिलाओं के उत्पीड़न जैसी होती है तो सीसी कैमरा पल पल में गश्त करने वाले पुलिस को शीघ्र जानकारी देगा। इससे क्षेत्र के आधार पर कैमरा तुरंत वहां पहुंच सकेगा। वहीं चेहरे की पहचान तकनीकी चुंगल में आने से बचने के लिए अपराधी रात में घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे में उनकी पहचान होना मुश्किल होता है। इस तकनीक का परीक्षण पहले 2 या 3 पुलिस स्टेशनों में किया जाएगा। फिलहाल शहर में कहीं भी सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी निगरानी नहीं हो रही है। अगर वहां कोई आपराधिक घटना होती है और सीन रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, घटना की जांच के दौरान पुलिस को पता चलता है कि कैमरा काम नहीं कर रहा है। ऐसा होने पर नई तकनीक के इस्तेमाल से अगर कोई सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे हैं तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को भेजी जाएगी।
मेडचल जिला जीडीमेटला इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित स्पेशल लैब में भीषण आग लग गई। हादसे में लैब के रिएक्टर में विस्फोट हो गया और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। यह बताया गया है कि रिएक्टरों में रासायनिक रिएक्शन के दौरान छोटी सी चिंगारी के कारण आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर 2 फायर इंजन, 1 आपदा वाहन और निजी पानी के टैंकरों की मदद से आग पर काबू पाया गया। लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एवं हिंदूपुरा विधायक नंदमुरी बालकृष्ण की पत्नी वसुंधरा देवी ने बलकमपेट में श्री एल्लम्मा पोचम्मा मंदिर में देवी के दर्शन किए। मंदिर प्रशासन ने वसुंधरा देवी का स्वागत किया। पुजारी रंगाचार्युलु ने बलकमपेट मंदिर की विशिष्टता समझाते हुए उन्होंने तीर्थ प्रसाद दिया। इस अवसर पर मंदिर की संचालन परिषद सदस्य एम हनुमंतराव, वरिष्ठ सहायक साई शंकर प्रसाद उपस्थित थे। कड़पा जिला प्रदुटूर के जाने माने बिजनेसमैन बूसेटी राम मोहन राव 7वीं बार आर्य वैश्य संगम के अध्यक्ष चुने गए हैं। वे पिछले 18 वर्षों से आर्य वैश्य संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। 7वीं बार आर्य वैश्य संघ के अध्यक्ष चुने गए राम मोहन राव को उनके आवास पर गंगी शेट्टी रामानैया फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिनय, टीएमपीए संस्थापक अध्यक्ष गारे वेंकटेश मादिगा और कई अन्य लोगों ने सम्मानित किया। राम मोहन राव आर्य वैश्य संघ को अधिक और बेहतर सेवाएं प्रदान करने का भरोसा दिया। यह राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह दिखता है। डबल लेन सड़क घने जंगल क्षेत्र से होकर गुजरती है। हालांकि यातायात सामान्य रूप से चल रहा होता है, वाहन दोनों तरफ रुक गए हैं। बीच में 150 से 250 मीटर की दूरी पर कोई वाहन नहीं दिखाई देता है। यदि वाहन दूसरी तरफ से लंबी दूरी पर रुकते हैं, 2 व्यक्ति इस तरफ वाहनों को एक साथ रोकते हैं और यातायात पुलिस का काम करते हैं। उस तरफ से एक शेर आ रहा है। शेर कैसे आ रहे हैं यह तो पता नहीं, लेकिन सड़क किनारे चलने वाले वाहन इधर उधर रुक गए। सभी गाड़ियां रुकने के बाद छोटे छोटे कदम उठाते हुए और अपनी चाल से सड़क पार करते जाते हैं। यह सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। भारतीय वन सेवा के प्रवीण कसवान ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। यह थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन न्यूज़ लाइव।